Hello, my friends, all Indian friends and all foreigner friends. Hello, my friends, Jai Bhim. Today, let's talk about the G20 conference. So, let us tell you that apart from India, America, Britain, China, Japan, Mexico, Germany, France, Russia, Argentina, Australia, Brazil, Canada, Indonesia, Italy, South Korea, Saudi Arabia, South Africa, Turkey and European Union are included. In India, coming in India, South Africa also, Turkey also and Saudi Arabia also, and I remind you China also. The South Africa, Turkey, European Unions included more countries. Its share in the world GDP 85%. Apart from Union, because this summit, this G20 summit, countries account of 85% of the world and total production, and group countries share in international trade is 75%. Being the founder and national president of Bhim Sena, I welcome all the guest countries on their arrival in India. My aim here, because my aim here is clear. My aim here is not to oppose G20. My aim, my intention here is not to entertain and apologize to the guest or the host attending the G20 summit. Rather, my aim is to guide to Modi government only. The routes through which the representatives of this country will pass have been illuminated, because the Indian government and Modi government making fool of all Indians. The biggest question is why those roads are taken care of just to show them the foreigner guests. Why can't the improvement of those roads be permanent? Broken roads have been filled. The dirty water running on the roads has been stopped. The stench emanating from the overnight, and because the from drains was covered, heaps of garbage have disappeared. Overnight is the cleanliness campaign of the Modi government. Just a show only, just a show and a fraud, properly fraud to the Indians, to the Indian citizens, Delhi citizens. Due to these accidents happen daily. Accidents happen daily. People lose their lives. Why? People lose their lives despite speed. Is that not visible to the government, to the Indian government, to the Modi government? The slum huts along the roads have been removed. Shameful. Totally shameful. Roads in place like Moti Bagh, Delhi have been developed in European countries' lines. You mean people who had the filth of the country only on the surface? Clean the filth of the country permanently, then I will press you. It was same thing as the butter of fragrant perfume had been smeared over the pitcher full of dirt. To save the guests from traffic jam, a lockdown of few days, the Modi government shows their implements, shows their fake arrangements. Modi government has courage, has been announced, lockdown has been announced. The Modi government has been courage, then make arrangements to remove these traffic jam permanently? Question mark. I will make question mark. Falsely pressing one lines in the front of foreigner guests.
will do not any good to the country, just like the private sector workers, government servants, professionals, advocates, doctors, patients, ambulances get stuck in traffic jam because several hours every day. Just look at the foreigner guest stuck in the traffic jam. If you are not exposed in the front of whole world, if you are not exposed in the front of all world, and all world, tell me about this, by getting stuck in the traffic jam, many people loses their important work, and many patients lost their lives. The double-faced people, BJP and Modi government. Why boycott Chinese? Why boycott Chinese goods will not fix their economic deal with China, and will the fool the Indians by trapping them in the trap opposing China. BJP people see Indian Muslim as Pakistanis, and they are tortured on the basis of their religion because they are Muslims. False cases are registered against the Muslims of the country India. In India, BJP RSS create Hindu-Muslim riots, dange riots, and take political advantage in the name of religion. But the hypocritical Modi government will fulfill this economic greed by joining hands with a rich Muslim country like Saudi Arabia. Why? Like Saudi Arabia, and make hands and rich hands joining hands, because Saudi Arabia is a rich country. BJP hearted for Muslims will end in G20 conference because Modi government is greedy, totally greedy for money from rich countries like Saudi Arabia, China, America. See the differences between the words and actions of these BJP people here. In these total full of Indians in these days, what will happen to those poor people who fill their stomach by begging every day at traffic signals? From where will he eat bread these days? My aim is show the mirror to the government, Modi government, central government. My aim is that India should become a strong country. Modi government making totally false economic deals with China, economic deals of all countries, and poor India totally talk about this. Why you making fools to Indian government, to Indian citizens? Why? And fragrant perfume मेकिंग ओन एक घड़ा, यह एक ऐसा है कि एक घड़ा है, उस घड़े में गंदगी भरी हुई है, और उस गंदगी की दुर्गंध को छिपाने के लिए उस घड़े के ऊपर मक्खन लगा दिया गया है, उसकी गंदगी ना दिखे और उससे गंदगी की बदबू ना आए, इसलिए एक सुगंधित इत्र उसके ऊपर छिड़क दिया गया, उसके ऊपर लपेट दिया गया है. G20 समिट, मोदी गवर्नमेंट अरेंजमेंट्स टोटल फूल. माई एम नॉट डाउन टू इंडिया, माई एम ओनली ए मिरर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू मोदी गवर्नमेंट. बीजेपी के अंधभक्तों को इंग्लिश समझ में नहीं आएगी. ये इंग्लिश हमें आरक्षण से नहीं मिली, हमारी मेहनत से मिली है. इसलिए बीजेपी के अंधभक्तों को इंग्लिश समझ में नहीं आएगी. मुझे लगता है कि मुझे हिंदी में भी उनको समझाना पड़ेगा. हिंदी में इन लोगों को समझाना पड़ेगा, तब जाकर के इनको
इंग्लिश की हिंदी समझ में आएगी। मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी यह नहीं है कि मैं आने वाले अतिथियों का अपमान करूं या मैं सरकार को या फिर भारत देश को नीचा दिखाने का प्रयास करूं। मेरा मकसद साफ साफ है और क्लियर है कि हम आज बात कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले यही कहा कि मैं स्वागत करता हूं उन सभी का, मोस्ट वेलकम करता हूं जो मित्र देश G20 मित्र देश जो भारत आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। अब बात कहां आ जाती है कि आज हम बात कर लेते हैं G20 सम्मेलन की। तो आपको बता देता हूं कि इसके अलावा भारत जो है, भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, जापान, मैक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, रूस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूरोपियन यूनियन आदि शामिल हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि मोदी सरकार का सच क्या है। आखिर मोदी सरकार क्या चाहती है, ये मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रही है और क्या कर रही है, आखिर झगड़ा क्या है मोदी सरकार से। प्रॉपर मैं बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व की जीडीपी में, पूरे विश्व की जीडीपी में मेरे सर पे एसी लगा है इसलिए मुझे छींक आ गई। पूरे विश्व की जीडीपी में इसकी अपनी एक 85% हिस्सेदारी है और इस 85% हिस्सेदारी में हमारे अलावा, भारत के अलावा G20 देशों में दुनिया भर का जो 85% प्रोडक्शन होता है, आर्थिक डील्स होती है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है, उस समूह में इन देशों की 75% हिस्सेदारी होती है। मैं भीमसेना संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर भारत आने वाले सभी अतिथियों का भारत पहुंचने पर स्वागत करता हूं। यह मेरा उद्देश्य G20 का विरोध करना नहीं है। मेरा उद्देश्य G20 सम्मेलन में शामिल हो रहे अतिथियों का या मेजबानों का विरोध करना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य मोदी सरकार का मार्गदर्शन करना है। जिन रास्तों से इन विदेशी देशों के प्रतिनिधि गुजरेंगे उन रास्तों को चमका दिया गया है, जिससे बड़ा सवाल यह उठता है कि उन रास्तों की सुध विदेशी मेहमानों को दिखाने मात्र के लिए ही क्यों ली गई। क्या उन रास्तों का सुधार स्थायी नहीं हो सकता? टूटी हुई सड़कें भर दी गई, सड़कों पर चलता हुआ गंदा पानी रोक दिया गया, नालों से उठती हुई बदबू को ढक दिया गया, कूड़ों के ढेर रातों रात गायब कर दिए गए। क्या मोदी सरकार का स्वच्छता अभियान मात्र दिखावा है और ढकोसला है? रोजाना एक्सीडेंट होते हैं इनसे, रोजाना लोगों की जान चली जाती है, बीमारियां फैलती है और तो और वो सरकार को दिखाई नहीं देता है। सड़कों के किनारे झुग्गी झोपड़ियां हटा दी गई हैं, जो सरकार को वो दिखाई नहीं दे रहा है। मोती बाग जो है दिल्ली के अंदर, मोती बाग में यूरोपियन तर्ज पर सड़कों को डेवलप किया गया है। यूरोपियन तर्ज पर देश की गंदगी को सिर्फ ऊपर से छिपाने वाले मतलबी लोगों ने देश की गंदगी को साफ करने की जहमत नहीं उठाई, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, और इन्होंने इस गंदगी को ढकने का अस्थायी तौर पर प्रयास किया है। स्थायी तौर पर भारत को स्वच्छ बनाने का कोई प्रयास नहीं किया है। यह तो वही बात हो गई कि जैसे एक गंदगी से भरे हुए गड्ढे के ऊपर मक्खन और सुगंधित इत्र लपेट दिया जाए तो अतिथियों को ट्रैफिक जाम से, यह तो यही बात हो गई कि भाई इत्र जो है वो लपेट दिया गड्ढे के ऊपर। अतिथियों को ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए कुछ दिन का इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, कुछ दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी। मोदी सरकार यदि हिम्मत है
तो ट्रैफिक जाम को आप परमानेंट स्थायी तौर पर ट्रैफिक जाम का इंतजाम करके दिखाएं। विदेशी अतिथियों के सामने अपनी झूठी वाहवाही करने से देश का भला नहीं होगा। जो प्राइवेट काम करने वाले लोग हैं, सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या सीएस हैं, कंपनी सेक्रेटरीज जो इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर मरीज हैं या एम्बुलेंस में रोजाना कई घंटों वो जाम में फंस जाते हैं, ठीक ऐसे ही विदेशी अतिथियों को जाम में फंसा करके देखें, आपको पता चल जाएगा। यदि पूरे विश्व के सामने तुम्हारी पोल ना खुल जाए तो कहना। जाम में फंसकर अनेकों लोग अपने जरूरी कामों से हाथ धो बैठते हैं और अनेकों मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। चाइना के माल का बहिष्कार करने वाले बीजेपी के दोगले लोग, डबल स्टैंडर्ड वाले लोग, मोदी सरकार अब चाइना से आर्थिक डील फिक्स करेंगी। अब ये चाइना से आर्थिक डील फिक्स करेंगी और लोगों को मूर्ख बनाते हैं कि चाइना का वो बहिष्कार कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं वो चाइना के माल का बहिष्कार कर रहे हैं। अब वो चाइना से हाथ मिलाएंगे, अब वो चाइना से पूरे तरीके से डील फिक्स करेंगे, आर्थिक डील फिक्स करेंगे। हम भारतीयों को चाइना के विरोध में ये लोग चाइना के विरोध में फंसा करके मूर्ख बनाने का काम करते हैं। बीजेपी वालों को भारत के मुसलमान में पाकिस्तानी दिखाई देते हैं, उनके ऊपर धर्म को लेकर के अत्याचार किया जाता है, देश के मुसलमानों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। भारत में बीजेपी आरएसएस हिंदू मुस्लिम दंगे कराते हैं। भारत में बीजेपी और आरएसएस हिंदू मुस्लिम दंगे कराते हैं, सरकार करवाती है, बीजेपी गवर्नमेंट कराती है और धर्म के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए यह पूरा खेल खेला जाता है। लेकिन दोगली मोदी सरकार, दोगले बीजेपी वाले सऊदी अरब जैसे अमीर और मुस्लिम देश के साथ अपना हाथ मिलाकर अपना आर्थिक लालच पूरा करेंगे। इस G20 सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए बीजेपी की नफरत कुछ समय के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब जैसे अमीर देशों से मोदी सरकार को रुपयों का लालच लेना है। यहां ये जो बीजेपी वाले हैं, इनकी कथनी और करनी में अंतर साफ तौर पर नजर आ जाएगा। इन दिनों में उन गरीबों का क्या होगा जो कि ट्रैफिक सिग्नल पर रोजाना भीख मांगते हैं, जो रोजाना भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, क्योंकि कुछ दिन का लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। वो इन दिनों रोटी कहां से खाएंगे। मेरा मकसद मोदी सरकार को आईना दिखाना है, सिर्फ मेरा मकसद है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने, भारत एक सुदृढ़ राष्ट्र बने, यह मेरा मकसद है। और जितने साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े हैं भाई, उन सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम के साथ अभिवादन व्यक्त करते हुए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने सुना। और मैंने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में आपको संबोधित करना इसलिए जरूरी समझा कि बीजेपी के अंधभक्तों को यह भाषा, इंग्लिश भाषा समझ में नहीं आएगी। वे लोग आरक्षण का रोना तो रोते हैं, लेकिन वे लोग नहीं चाहते कि SC ST OBC माइनॉरिटी आगे बढ़े। वे लोग नहीं चाहते। हमने इंग्लिश में स्पीच दी है ताकि इस वीडियो को बाहर देश के लोग भी सुने, फॉरेनर लोग भी सुने, विदेशी लोग भी सुने, लेकिन देश के लोगों के समझ में आए। और यहां हिंदी को अपनी मातृभाषा बताने वाले जो इनकी संस्कृति अपनी ये बताते हैं, और इनका टोटल रवैया वो है कि ये लोग हम लोगों पर आरक्षण को लेकर के तरह तरह के गलत और भद्दे गंदे कमेंट करते हैं। अब इन लोगों को बताने का वक्त आ गया है कि ये आरक्षण से नहीं मिलता, ये मेहनत से मिलता है बेटा, समझे। ये मेहनत करनी पड़ती है, तब मेहनत से मिलता है। और ना जाने ये लोग क्या क्या कहेंगे। ये भी कहेंगे भाई पढ़ के बोल रहा है, ये भी कहेंगे कि ऐसे बोल रहा है। भाई तुम्हारी हर बातों को एग्री करते हुए, हालांकि तुम कहीं भी किसी भी डिबेट में आ जाओ, इंग्लिश चैनल पे बुला लो, अगर तुम्हारी धज्जियां ना उड़ा दूं ना तो कहना। जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, अगर तुम्हारी धज्जियां ना उड़ा दूं ना तो बोलना, समझे। ये बाबा साहब के सिपाही हैं, ये ऐसे ही अरे गहरे नत्थू खैरे मत लगा लेना आप,
ये ध्यान रखना, ये बाबा साहब के सैनिक हैं, ये भीमसेना के सैनिक हैं। हर जगह अपना परचम लहराया हमने। तुम जैसे लोगों की तरह हमने फालतू के कमेंटबाजी करके अपनी पॉपुलरिटी नहीं कराई, समझे। हम बाबा साहब के सच्चे सैनिक हैं। और आज G20 समिट का, G20 सम्मेलन का हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। क्या होगा भारत का, देखिए आप, होगा क्या भारत का। मोदी सरकार को मेरा सजेशन मैंने अपना दे दिया है, इंग्लिश में भी दे दिया है, हिंदी में भी दे दिया है। अंधभक्तों के लिए भी सुनने के लिए आसानी हो तो हमने हिंदी में भी बोल दिया है। हाँ, और ये भी मैंने, लोग भी ये भी कहेंगे कि भाई पढ़ के बोल रहा है। हम तो सीधी सी बात है, मेहनत करते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। और किसी भी क्षेत्र के अंदर तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम लोग हमारा आमना सामना कर सको। किसी भी क्षेत्र में आ जाइए, चुनौती देके कह रहा है नवाब सतपाल तंवर, ऑलराउंडर बंदा है, वन मैन आर्मी है, धज्जियां उड़ा देगा तुम्हारी हर जगह, धज्जियां। ये ध्यान रखना। और दूसरी बात, हम घमंड करते हैं अपने ऊपर, बाबा साहब का घमंड करते हैं हम अपने ऊपर, बाबा साहब अंबेडकर जी का, अपने महापुरुषों का घमंड हम अपने ऊपर करते हैं। और तुम्हारी औकात है तो तुम भी पढ़ के बोल लेना भाई, अगर तुम्हारी बात को सच्चाई मानने। वरना सीधी बात है भाई, आ जाना कभी भी आमने सामने और टक्कर कर लेना। इंग्लिश जापानीज में भी बोल के दिखाऊंगा कभी, रशियन में भी बोल के दिखाऊंगा कभी, चाइनीज में भी बोल के दिखाऊंगा। ये तीन मैंने कभी बताया नहीं आपको। जापानीज पे, रशियन पे, चाइनीज पे अपनी बहुत अच्छी पकड़ है और कई साल से है, बहुत अच्छी पकड़ है। सिर्फ इंग्लिश से नहीं, इंडियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश के साथ साथ हमारी पकड़ जो है वो रशियन लैंग्वेज पर भी है, जापानीज लैंग्वेज पर भी है और हमारी चाइनीज लैंग्वेज पर भी अच्छी पकड़ है। लेकिन मैंने कभी बताया नहीं, कभी मैंने खुद की तारीफ नहीं की। हाँ, बोलकर बताऊंगा मैं। इन जो ये बीजेपी के अंधभक्त है ना, इनको बोल करके बताऊंगा, अरे तुम भी पढ़ के बोल लेना, तुम्हारी औकात है तो। यही बात है। और आमने सामने आ जाना, रशियन, जापानीज के साथ साथ चाइनीज, ब्रिटिश इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश आ जाना आमने सामने। और तुम लिखा हुआ ले आना और हम लेकर के आएंगे सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के अंदर जो होता है, उपज है, जो कई सालों से मेहनत की है, हम वो रखेंगे अपने साथ में, अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, समझ में आया कुछ और समझाना है? आरक्षण का रोना रोने वालों, अंधभक्तों, आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम्हारा बाप तो क्या, तुम्हारा पूरा खानदान, तुम्हारी पीढ़ी भी आ जाए ना, वो आरक्षण नहीं खत्म कर सकती और वो संविधान नहीं खत्म कर सकते तुम लोग। तुम्हारे बाप दादा की तो औकात नहीं थी संविधान लिखने की। तुम क्या बीजेपी, आरएसएस क्रिएट हिंदू मुस्लिम, यू क्रिएट रियॉट्स, हिंदू मुस्लिम दंगे इन इंडिया। हाँ, टोटली फेक, यू आर टोटली फेक। बीजेपी आईटी सेल स्टैंडर्ड पर्सन्स, बीजेपी आईटी सेल बेरोजगार पर्सन्स, अनएम्प्लॉयड। इन बेरोजगारों को पकोड़े तलने का नहीं, इन बेरोजगारों को मोदी ने आईटी सेल में काम दिया कमेंट करने का। ओके बाबा, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, फिर मिलते हैं, कटिंग करते हैं तुम्हारी पूरी। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद और मनीवादियों की फटेगी बारंबार। जय भीम।